Good morning, everyone. Okay, good morning, everyone. And last time we were trying to understand what the sterilization is. वैसे स्टरलाइजेशन के आपको दो अलग अलग मीनिंग्स मालूम होंगे शायद. जैसे कि हम रिप्रोड्यूसिबिलिटी पे भी हम बोलते हैं स्टराइल होना या स्टरलाइज होना, है ना. So to become an organism to become unable or unable to reproduce is also called sterilization. But what exactly we are trying to understand here is that we are trying to make object, surface, or something, some other place, uh, devoid of the microorganisms. It can be like fungi, bacteria, viruses. So to make them dead or kill or make them inactive or defunctional, non-functional. कहने का मतलब ये है कि sterilization is a process by which you kill or you make inactive or you make them non-functional or dead the microorganisms which usually settle on the surfaces and objects and equipments which we use for our medical facilities or some experimental facilities. So for all these facilities, when we need that, there should not be an interference of any microorganism in our experimentation or in our medication or in our hygiene care process. So sterilization is a process in which by which you can make these microorganisms either dead or inactive or non-functional, and what exactly is the like by which means you can do this. So with the help of heat is one of the factors by which you can sterilize, and the chemicals are also there by which we can make them uh, sterile. And there's another thing by with the help of pressure also we can make them uh, sterile. The high pressure either liquid pressure or the air pressure, atmospheric pressure would help us in sterilizing these places, these equipments, objects, or surfaces on which we are trying to conduct some experimentation or hygiene process or medical process. तो जैसे कि अभी आपको मालूम है ये इसके अलावा हीट प्रेशर केमिकल्स के अलावा वी हैव फिल्ट्रेशन. व्हाट इज दैट फिल्ट्रेशन? फिल्ट्रेशन जैसे अभी आपने सुना होगा कोविड के चलते आपने सुना होगा कि वी आर we were using N95 masks. Those N95 masks are nothing but the mask with some fabric which has got very small pores, so that the microorganisms cannot enter. And that way, we make the surface like our fish face to be devoid of these microorganisms, which might infect us, which might cause some infection in us. सो ये अलग अलग तरीके हैं जिसके थ्रू हम स्टरलाइज करते हैं चीज़ों को. कोई सरफेस हो गया, कोई इक्विपमेंट हो गया. यदि मान लीजिए एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो यदि डिसेक्शन कर रहे हैं तो डिसेक्टिंग मटेरियल जो होता है, नॉट द मटेरियल एग्जैक्टली, डिसेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट्स और इक्विपमेंट जो उनको भी हम स्टराइल करते हैं. समटाइम्स व्हेन वी टेक ब्लड सैंपल्स लेते हैं तो यूजुअली वी sterilize the glassware that we use, or the pipette, or the tips, or the glass slides. ये सब चीज़ें को हम यूजुअली स्टरलाइज करते हैं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट वेज बाय डिफरेंट वेज. उसमें से एक जो था वो है हीट है. हीट हीट के अब कौन कौन से तरीकों से हम हीट की मदद से हम स्टरलाइज कर सकते हैं. उसमें से एक होता है ड्राई हीट. ड्राई हीट मतलब जैसे कि हम ओवन में करते हैं तो वी यूजुअली make that small environment where that particular equipment or the object is being is being kept inside.
and that whole environment or the whole environment is made devoid of the microorganisms. तो ये एक ड्राई हीट स्टरलाइजेशन है एंड इसको हम इस इक्विपमेंट जैसे हम कह रहे हैं कि एक छोटा सा एक स्पेस हो जैसे कि हम ओवन जैसे हम कहते हैं उस स्पेस को हम पूरा एनवायरनमेंट को हम यूजुअली हीट टेम्परेचर रेज कर देते हैं एंड दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर गेट किल्ड बट समटाइम्स वी हैव ब्लॉक हीटर्स ऑल्सो ब्लॉक हीटर्स मतलब कैसे होते हैं छोटे से ब्लॉक्स रहते हैं छोटे छोटे ब्लॉक्स रहते हैं स्मॉल सपोज करिए 4x4 का क्यूब होगा जिसमें छोटे छोटे होल्स रहेंगे बीच में जिसमें छोटे छोटे कंटेनर्स क्यूवेट्स हो सकते हैं क्यूवेट समझते क्यूब का छोटा फॉर्म क्यूवेट मतलब सिलेंड्रिकल कोई भी कंटेनर स्क्वायरिश टेस्ट ट्यूब समझ लीजिए तो क्यूवेट्स हो गए या फिर कहना चाहिए वायल्स हो गए है ना वायल्स इन सब चीज़ों को हम स्टरलाइज कर सकते हैं और यदि मान लो कुछ और तरीका जैसे मैंने उस दिन कहा था हीट के अलावा दूसरा एक और प्रोसेस था जिसमें हम स्टीम यूज़ करते थे तो वाटर को यूज़ कर रहे हैं उसको हम हीट अप करते हैं जो स्टीम आती है क्योंकि स्टीम का टेम्परेचर ज़्यादा होता है 100 से और उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं on the surfaces and objects and equipments which we use for some process where the contamination of these microorganisms is not required or not allowed. So एक तरीका ये भी है स्टीम से भी करना ड्राई हीट से करना उस दिन हम बात कर रहे थे जैसे कि स्टीम को जब हम यूज़ करते हैं तो जो इक्विपमेंट या फिर जो इंस्ट्रूमेंट हमने बनाया हुआ है उसको हम ऑटोक्लेव कहते हैं ऑटोक्लेव इज नथिंग बट अ प्रेशर कुकर सॉर्ट ऑफ से घर में हम जब प्रेशर कुकर यूज़ करते हैं वैसे ही लैब्स में हम हमारे जो इक्विपमेंट्स हैं और जिससे इंस्ट्रूमेंटेशन है जैसे हॉस्पिटल्स में भी आपने देखा होगा कि सर्जरी के पहले जितने भी इक्विपमेंट इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं नॉट इंस्ट्रूमेंट्स इक्विपमेंट लाइक सीजर्स हो गया स्कैपल्स हो गया फोर्सेप्स हो गया तो ये सब चीज़ों को भी वी नीड टू स्टरलाइज सो दैट there should not be a contamination while doing the surgery with any kind of microorganism which are not needed or which might establish an infection. तो इसके साथ साथ क्या होता है कि कोई भी लिविंग सेल हो वो भी डिस्ट्रॉय हो सकता है इसमें एंड होता है यानी कि कोई बैक्टीरिया जो यूजफुल होगा वो भी अंडर सैनिटाइजेशन या फिर कहना चाहिए नॉट सैनिटाइजेशन स्टरलाइजेशन के तहत आएगा तो इवन दैट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच इज इट मे नॉट बी harmful but it will be killed because sterilization is such a process in which every living organism is either killed or being made non-functional or inactive. तो एक प्रेशर का है एक सॉरी स्टीम का है और एक ड्राई हीट का है और स्टीम के हमारे पास हमने कुछ इंस्ट्रूमेंट्स बना रखे थे ऑटोक्लेव जिसे हम कहते हैं और ड्राई हीट में हमें करने स्टरलाइज करने के लिए वी हैव ovens और अभी देखा जाए तो अभी वेव्स के थ्रू भी हम करते हैं माइक्रोवेव्स हो गए माइक्रोवेव्स के थ्रू भी हम टेम्परेचर रेज कर सकते हैं एंड इफ एट ऑल that particular microwave interference is not affecting the molecular composition of the content यानी कि जो भी जिसको भी हम इंस्ट्रूमेंट के भी इंस्ट्रूमेंट हो या फिर कोई दूसरी चीज़ हो ऑब्जेक्ट हो यदि हम उसको स्टरलाइज करना चाहते हैं और माइक्रोवेव उनके मोलिकुलर कंपोजिशन को बिगाड़ता नहीं है तो वी कैन यूज इट जैसे कि आप लोग घर में माइक्रोवेव यूज करते हैं तो इट्स द बेस्ट वे टू गेट योर फूड रीहीटिंग के पर्पज से बहुत अच्छा है वो इट डज इट फास्ट अदरवाइज वेव्स को भी यूज करके हम कर सकते हैं अदरवाइज नॉर्मल ओवन में रखिए तो हीटर्स उसके कॉइल्स गर्म होते हैं अंदर एनवायरनमेंट जो सराउंडिंग है अंदर का ओवन के अंदर का वो पूरा का पूरा एनवायरनमेंट टेम्परेचर जिसमें बढ़ा देते हैं एंड द टेम्परेचर किल्स और मेक्स इट इन नॉन फंक्शनल अब इसके अलावा जैसे देखा जाए तो ये कुछ तरीके हैं ड्राई हीट का हो गया और आई वुड से लाइक कुछ और ऑप्शंस हैं किसी और को मालूम है कुछ और ऑप्शन से हीट को यूज करते हुए हम कुछ कर सकें एक है दूसरा एक तरीका है फ्लेम यदि हम फ्लेम यूज करते हैं यानी स्ट्रेट अवे जैसे हम केमिस्ट्री के लैब में आप देखे होंगे कि यू हैव बर्नर्स तो बर्नर्स में हम यूजुअली जो हम कभी कभी ये ओल्ड प्रैक्टिस था कि व्हेन यू नीड टू स्टरलाइज यू नीड टू किल
some organisms, microorganisms on the equipments which are you're using, like forceps, scissors, or scalpels, या फिर syringe needles हो गई. So we usually, we put them on what? Flame. Flame पे रखते हैं, and we make them red hot, so that all the contamination, all the living systems which are there on the surface would get killed, and that particular instrument or equipment can be like cooled off and then can be used. Like cool, जब हम ठंडा कर दिए तो शायद उस पर फिर से माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैठ सकते हैं, बट इट टेक्स सम टाइम टू microorganisms to settle on those surfaces again, because they were, with the help of temperature, being made dead or inactive. And then ये जैसे कि हीट का हो गया ओवन में करना, या फिर कहना चाहिए किसी क्लोज्ड कंटेनर में हमने इनको गर्म कर लिया, या फिर गर्म पानी में हमने गर्म कर लिया, या फिर हमने स्टीम को यूज़ किया. तो स्टीम के लिए हमारे पास ऑटोक्लेव जैसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, और या फिर हम वेव्स भी यूज़ कर सकते हैं टेक्नोलॉजी में. वेव्स के थ्रू भी हम गर्म कर सकते हैं, हम उनको आई मीन स्टरलाइज कर सकते हैं. और जैसे कि ड्राई हीट का हो गया, स्टीम का हो गया, और जैसे मैंने अभी बताया कि एक फ्लेम का हो गया, और एक और इंसनरेशन बोलते हैं. इंसनरेशन मतलब क्या होता है कि इंसनरेट मतलब जलाना. जैसे हम फर्नेस होता है, फर्नेस में क्या होता है कि हम कोई चीज़ अंदर रखते हैं फ्यूल जैसा, वो जलता है, और उसके कारण एनवायरनमेंट या जो भी कंटेनर है उसका टेम्परेचर बहुत रेज किया जाता है. एंड इंसनरेशन इज अ प्रोसेस वेयर हाई टेम्परेचर्स आर रिक्वायर्ड. लाइक तो इंसनरेशन यूजुअली केमिकल सब्सटेंसेस यूज किए जाते हैं जो बर्न होते हैं, एंड उसके कारण भी वो एनवायरनमेंट स्टरलाइज कर देता है. एंड ऑफ कोर्स लिविंग ऑर्गेनिज्म जो भी आसपास होंगे वो भी दे वुड बी किल्ड और मेड नॉन फंक्शनल. इसके अलावा एक वर्ड है, यदि आपने सुना है कि नहीं मांगे, क्या कहते हैं उसको, ग्लास बीड यूज करते हैं. छोटे छोटे कंटेनर से मान लीजिए टेस्ट ट्यूब्स हैं, या फिर कहिए कि एक छोटा सा क्यूवेट है. क्यूवेट मतलब वही स्क्वायर शेप का एक टेस्ट ट्यूब समझ लीजिए, छोटा सा. उसमें कोई कंटेंट रखना चाहते हैं जो कि वो स्टरलाइल रहे, या फिर उसका एनवायरनमेंट, उसकी इंटरनल लेयर, इंटरनल सरफेस जो है वो स्टरलाइल रहे. तो उसमें यूजुअली ऐसे प्रोसेस था, थोड़ा पुराना प्रोसेस है, जिसमें ग्लास बीड रखी जाती है, जिसको हम 250 डिग्रीज तक हीट करते हैं. सपोज हमको क्यूवेट गर्म नहीं करना है, नॉट टू मेक दैट स्पॉइल, तो फिर हम क्या करेंगे, बीट को बहुत गर्म कर देंगे, 250-300 डिग्रीज तक गर्म करके उसमें डाल देते हैं. तो उसके क्या, उसके साथ में जो भी कांटेक्ट में जितना भी एयर आ रहा है या फिर सरफेस आया, वो सब स्टरलाइज हो जाएगा. ये एक पुराना प्रोसेस था. फ्लेम जहाँ यूज नहीं कर रहे तो वहाँ बीट यूज कर देते हैं. और एक और वर्ड था विच आई एम फॉरगेटिंग, इट्स टिंडलाइजेशन बोलते हैं. टिंडल इफेक्ट आप लोग को मालूम है क्या? टिंडल इफेक्ट, आपने टिंडल इफेक्ट सुना है? किसने सुना है, कोई बोलेगा? बोलिए. लेकिन याद नहीं आ रहा. हमने टिंडल इफेक्ट पढ़ा है, हाँ केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, और हमारे 5th सेमेस्टर के एंजाइम्स के उसमें भी पढ़ा है. वो ऐसा कहा जाता है कि जब कोलाइड्स है ना, एक तो ट्रू सोल्यूशन होता है, कोलाइडल सोल्यूशन होता है. तो कोलाइडल सोल्यूशन में जो सोल्यूट है उससे कुछ पार्टिकल्स का साइज इतने से ऊपर रहा तो हम उसको कोलाइडल बोलते हैं, जो पूरी तरह कंप्लीटली डिजॉल्व नहीं होते. The particles are there in the solution but they move here and there. तो उसके ऊपर जब हम लाइट इंसिडेंट करते हैं तो these molecules scatter the light, जिसको हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट. बट इट इज अ डिफरेंट थिंग. जैसे मैंने आपको बताया था कि पानी में किसी चीज को गर्म करना, जैसे पानी में भी गर्म करना, स्टीम से भी करना. पानी में गर्म करने को ही हम यूजुअली टिंडलाइजेशन बोलते हैं. ये कुछ समय के लिए किया जाता है, जैसे कि हम जैसे पानी पीते हैं, राइट. तो यदि हमारे पास फिल्टर नहीं है तो हमें क्या कहा जाता है कि पानी लाइए, उसको कम से कम 20 मिनट तक बॉईल करिए. 20 मिनट तक बॉईल करते हैं तो उसमें जितने भी कोलेटरल पार्टिकल्स हैं, इन केस यदि कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे तो वो सब मर जाएंगे. तो मरने के लिए हमें क्या करना होता है, यदि ऐसा कोई लिक्विड है विच कैन बी बॉइल्ड एंड इट कैन बी यूज्ड फर्दर, इट डजंट
interpret the process in which we are involving it. तो हम उसको गर्म करेंगे, कम से कम 20 मिनट कहा जाता है। 20 मिनट तक गर्म करें तो पूरे माइक्रोऑर्गेनिजम्स मर जाएंगे। लेकिन ये कंप्लीटली स्टरलाइज नहीं कर पाता, तो हमें क्या करना पड़ता है, इसे कूल डाउन करना पड़ता है। यू हैव टू, फिर उसके बाद इंक्यूबेशन में रख देना पड़ता है। इंक्यूबेशन मतलब फिर से नॉर्मल टेम्परेचर पे, एक रूम टेम्परेचर पे हम उसको क्लोज करके इधर इंक्यूबेटर में या फिर ऐसे बाहर रख देंगे। एंड देन व्हाट हैपेंस, फिर उसको फिर नेक्स्ट डे फिर से करेंगे। तो ऐसे उसको 3 से 4 बार करना पड़ता है। देन ओनली वी like we get that instrument or those liquids or the solutions which are to be sterilized, तो वो usually sterilize हो जाते हैं। तो इसको टिंडलाइजेशन भी कहते हैं। टिंडलाइजेशन मतलब सिंपल समझिए कि हम जो पानी पीने के लिए जो बॉयल करके ठंडा करके जो पीते हैं वही प्रोसेस है, बट इट्स रिपीटेड 3 to 4 times with a intermediate incubation। इंक्यूबेशन करने के बाद भी इंक्यूबेशन करना भी पड़ता है बीच में उनको, लाइक गर्म किए, ठंडा किए, इंक्यूबेट किए, फिर गर्म किए, ठंडा किए, इंक्यूबेट किए। तो इंक्यूबेशन यूजुअली ओवरनाइट रखते हैं। तो वो इट्स अ टीडियस लंबा प्रोसेस है स्टरलाइज करने के लिए, बट इट वाज यूज्ड इन ओल्डर डेज। अभी तो चीज़ें चेंज होती चली गई हैं। ये यूजुअली क्या है कि हम ये सब जो प्रोसेस डिस्कस कर रहे थे, इसमें यूजुअली हम टेम्परेचर को एज अ फैक्टर यूज करते हैं। जैसे कि अब आप लोगों ने कुछ पढ़ा होगा कि केमिकल्स के में जैसे नेक्स्ट जो टाइप है, कैटेगरी है in which the stabilization is done, तो वो जो नेक्स्ट कैटेगरी है उसमें हम क्या लेते हैं, केमिकल्स। तो केमिकल्स में ऐसे बहुत सारे केमिकल्स हैं, जैसे हम उस दिन बात कर रहे थे कि अल्कोहल भी एक है, एथलीन भी एक है, और समटाइम्स H2O2 पेरोक्साइड आपने सुना होगा। H2O2 भी है, उसको हम क्लींसिंग एजेंट भी बोलते हैं। बट क्लींसिंग एजेंट इसलिए कि वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को वो सब कुछ साफ कर देता है। कि जैसे कि हम लोग वो H2O2 शायद फेशियल्स में भी यूज होता है, जस्ट टू डर्ट डर्ट को निकालने के लिए। एंड इट ऑल्सो किल्स द परक्लोरेट है ना। तो ये सब ऐसे बहुत सारे केमिकल्स हैं। आप लोग ट्राई टू फाइंड आउट कैसे कौन कौन से केमिकल्स हैं जिसके थ्रू आप यूजुअली स्टरलाइज कर सकते हैं किसी चीज़ को, किसी इंस्ट्रूमेंट्स को। और केमिकल प्रोसेस में और क्या हो सकता है? केमिकल प्रोसेस में किसी को आइडिया है कि कोई और केमिकल ऐसा कुछ मालूम है जिससे हम इनको स्टरलाइज कर सकते हैं? एक है, हमारे एनवायरनमेंट में जो है एक लेयर जो हमको प्रोटेक्ट करता है, वो है ओजोन। तो ओजोन भी किसी किसी जगह पे यूज किया जाता है टू स्टरलाइज। But it all depends on the type of sterilization required and the type of surface of the object used to get it sterilized and the availability, है ना। तो ये सब चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है कि हम कौन सा प्रोसेस यूज करेंगे फॉर स्टरलाइजेशन। उसके बाद और भी बहुत सारे केमिकल्स हैं। मैंने बताया पैरासिटिक एसिड भी है एक, और H2O2 भी है, एथिलीडीन बोलते हैं शायद, डबल बॉन्ड वाला है एथिलीडीन। और एथिल अल्कोहल भी है, और मिथेनॉल भी है। मिथेनॉल, भी आप यदि इनकेस मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ेंगे आप, तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में आपको पढ़ने को मिलेगा कि जो ग्लास प्लेट्स हम यूज़ करते हैं, या ग्लास फेयर या फिर पाइपेज, या कार्ट्रिजेस जिसमें इलेक्ट्रोफोरेसिक सेटअप में जो रन होता है, जेल रन करते हैं। तो इन सब को हम यूजुअली क्या करते हैं, हम किसके साथ में, सॉरी क्या बता रहा था आप लोगों को, मिथेनॉल। तो हम इनको मिथेनॉल से ट्रीट करते हैं ताकि कोई ज़्यादा इन्फेक्शन ना हो। एक्चुअली क्या है कि मिथेनॉल एक प्रकार का क्लियरिंग एजेंट है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट एक्चुअली। जैसे अल्कोहल भी एक प्रकार से डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, but it helps in killing the microorganisms. The same way, actually, in chemistry or in the biological sciences, we use ethylene, I mean, ethyl alcohol and methyl alcohol, methanol or ethanol, for dehydration purpose. किसी सेल में से या फिर किसी टिश्यू में से हमें वाटर कंटेंट निकालना है, तो फॉर दैट पर्पज वी यूज। तो वो जो जेल रन करते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस में, उसमें भी वही होता है, मिथेनॉल यूज किया जाता है, क्योंकि मिथेनॉल थोड़ा माइल्डली डिहाइड्रेट करता है, एंड इट slowly extracts the water content of the gel, and gel को ड्राई करने में मदद करता है। Anyways, but they also kill many of the microorganisms by which we can attain some level of sterilization। अब इसके अलावा कोई और है क्या?
केमिकल्स तो और भी बहुत सारे केमिकल्स होंगे यू कम अक्रॉस। एक तो प्राइमरली आपको इन कुछ चीज़ों को ध्यान रखना है कि एक एल्कलीन है, ओजोन है, H2O2 है, परासिटिक एसिड है, और ओजोन बता दिया जैसे कि मैंने। एक और है केमिकल, यदि आप जानेंगे तो देवर फ्यू केमिकल कॉम्बिनेशन, केमिस्ट्री वाले कुछ ऑर्गेनिक केमिकल्स हैं जो हमें टिश्यू लेवल पे, जब हम टिश्यू वाले काम करते हैं, आप लोग माइक्रो टेक्निक पढ़ रहे होंगे तो उसमें यदि फिक्सेशन के बारे में पढ़ा होगा, टिश्यू को फिक्स करने वाला काम, तो उसमें बहुत सारे केमिकल्स हैं, लेकिन एक दो मेजर केमिकल्स हैं जो प्राइमरली बहुत मोस्टली या वाइडली यूज है। जैसे एक है फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड यूजुअली टिश्यू को फिक्स कर देता है, बट इट ऑल्सो हेल्प्स इन स्टरलाइजेशन। और एक वैसे ही यदि किसी बायोलॉजिकल सैंपल या टिश्यू को आप टीईएम बोलते हैं, टीईएम मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी है ना, एक स्कैनिंग और एक ट्रांसफ्यूजर। तो जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के लिए जब हम टिश्यू को फिक्स करते हैं यूजिंग सम फिक्सेटिव, सम केमिकल, तो वो केमिकल भी यूजुअली हेल्प्स इन स्टरलाइजेशन। तो एक नॉर्मल टिश्यू को नॉर्मल कंडीशंस में फिक्स करने के लिए यूजुअली हम फॉर्मेल्डिहाइड यूज करते हैं, या फॉर्मेल्डिहाइड के साथ में और भी कॉम्बिनेशन से टू मेक इट बेटर बेटर फिक्सेटिव। बट जैसे कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में हम फॉर्मेल्डिहाइड यूज नहीं करते, बिकॉज फॉर्मेल्डिहाइड इज ए हार्डी सॉर्ट ऑफ हार्ड फिक्सेटिव। वो बहुत गंदे तरीके से फिक्स कर देता है, मतलब फिक्स करता है बट इट्स हार्डी, थोड़ा सा क्रूड है। लेकिन वैसे ही हम जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के लिए कर रहे हैं तो देयर द माइक्रोस्कोपिकल स्ट्रक्चर शुड नॉट change, should not be disproportionated. So what happens, वहाँ पे हम केमिकल यूज करते हैं ग्लूटाल्डिहाइड। ग्लूटाल्डिहाइड करके एक केमिकल है जो एक फिक्सेटिव है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के लिए यूज किया जाता है टू फिक्स द टिश्यू फॉर सेक्शनिंग एंड ऑब्जर्विंग अंडर द माइक्रोस्कोप। तो ये फिक्सेटिव जरूर है, बट even they are fixatives, they usually help in sterilization of you know uh, the objects and the liquids and solutions or tissue uh, to some extent. तो मतलब हर एक का अपना अपना एक लेवल है sterilization का। People have found many chemicals like this जो sterilization में help करते हैं। इसके अलावा मैंने शायद एक और बात कही थी कि रेडिएशन के बारे में बात की थी, रेडिएशन। तो रेडिएशन में जैसे एक तो माइक्रोवेव्स भी एक हो गया, वो तो वेव्स हो गया। और रेडिएशन में आपको जैसे कौन कौन से रेडिएशन आपने सुने होंगे जो सरवाइव कर सकते हैं, कभी सुना है? कोई रेडिएशन के नाम सुने आप लोगों ने जो सरवाइव करते हो? कोई कुछ कह रहा है क्या? हम्म, कोई कुछ नहीं कहता। तो ऐसा है कि रेडिएशन में जैसे कुछ है कि नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन हैं और आयनाइजिंग रेडिएशन हैं। जैसे कि आपने सुना होगा अल्ट्रावायलेट रेज। अल्ट्रावायलेट रेज यूजुअली स्टरलाइजेशन में मदद करते हैं। हम जब डीएनए वाला काम करते हैं तो वी यूजुअली व्हाट, आजकल इंक्यूबेटर्स आ गए हैं जिसमें अल्ट्रावायलेट रेज यूज होती हैं। टेम्परेचर भी एक था ओवन का, और दूसरे ओवन आ गए हैं आजकल, इंक्यूबेटर्स आ गए जिसमें अल्ट्रावायलेट रेज या फिर इंफ्रारेड रेज। तो ये सब जो है ना, ये रेडिएशन हैं जिसके थ्रू हम usually we can many of the microorganisms get killed. Sometimes some molecules or enzymes they get deactivated. Sorry, तो रेडिएशंस भी हैं कुछ हद तक जो हमें हेल्प करती हैं सिविलाइजेशन के लिए। तो यही कुछ चीज़ें थी, इसको आपको इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर, और इसमें ढेर सारे छोटे छोटे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी बनते हैं। तो एक तो है ड्राई हीट वाला है। हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि डीएनए के लिए हम सैम्पलिंग वैम्पलिंग करते हैं, उसके कोई एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, तो भी यूजुअली जो इक्विपमेंट यूज़ करते हैं तो परप्लेक्स का रहता है, परप्लेक्स मटेरियल का रहता है, यानी कि वो प्लास्टिक भी नहीं होता और कुछ और भी होता है वो। तो वो जैसे हम बोलते हैं ना, प्लास्टिक मतलब पॉली एथिलीन है। तो ऐसे बहुत सारे पॉलीमर्स हैं, ऑर्गेनिक पॉलीमर्स हैं जो यूज़ किए जाते हैं फॉर एज अ नॉट द
ग्लासवेयर हम जैसे उसको बोलते हैं कि कौन सा वेयर बोलते हैं, पैरी वेयर्स बोलते हैं। तो वो छोटे छोटे वायल्स होते हैं, ट्यूब्स होती हैं, है ना, या फिर छोटे छोटे बीकर्स होते हैं। तो दीज यू नो दीज जो वेयर है इनको यूज कर इनको स्टरलाइज करना इसलिए जरूरी होता है जब हम डीएनए से डील कर रहे होते हैं। इफ दैट सरफेस इज बीन लाइक इज बीन या इंफेस्टेड विद सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सपोज एक बैक्टीरिया है, जब हम डीएनए एक्सट्रैक्ट करते होते हैं so that chemical will act on those microorganisms also, and even their genetic material will be like contaminated with the experiment we are doing. तो वहाँ पे यूजुअली हम अल्ट्रावायलेट रेज या फिर इंफ्रारेड रेज जो है इन सबको यूज करके उन चीज़ों को सरलाइज करते हैं। वहीं पे जब डीएनए का जब हम डील करते हैं तो हम यूजुअली छोटे छोटे वायल्स रहते हैं जो पीसीआर मशीन में डालने के लिए कभी काम आते हैं। तो उन सब वायल्स को हम बड़े 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 इंक्यूबेटर में डालने से इट्स वेस्टेज ऑफ क्या कहते हैं उसको, वेस्टेज ऑफ एनर्जी। तो वो उनको ब्लॉक हीटर्स पे रखते हैं। छोटा सा एक 4x4 इंच का एक क्यूब रहेगा जिसमें जैसे आपने देखा होगा एलाइजा, मालूम है आपको? एलाइजा एक टेक्निक है जिसके थ्रू हम छोटे छोटे वायर्स में छोटे छोटे सैंपल्स लेते हैं और उनके अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन को लेकर फिर बाद में हम अलग अलग रिएजेंट्स यूज करके उनके कलर अपीयरिंग जो नेचर है उसको एलाइजा रीडर पे रीड करते हैं। तो वो यूजुअली क्या है कि जब इतने छोटे वायल्स हैं तो उनको छोटे से वायल्स को आप कहीं रखेंगे, आई मीन एक बड़े से इंक्यूबेटर में, तो वो एनर्जी का वेस्टेज है। तो इन इन दोज प्रोसेसेस वी यूज सॉलिड ब्लॉक्स होते हैं। तो वो ब्लॉक्स में क्या होता है, छोटे छोटे छेद होते हैं जिसमें हम वायल्स को बिठा सकते हैं और वो ब्लॉक पूरा का पूरा अंदर से गर्म हो जाता है। इट्स अ काइंड ऑफ ड्राई हीटिंग, ड्राई स्टरलाइजेशन। तो स्टरलाइजेशन कैरीज अ वेरी इंपॉर्टेंट important process. It carries very too much of importance in uh, in the processes like in medical processes or experimental processes, research process में, और as such in a daily day in hygiene level पे भी हम sterilize करने के लिए हम use करते हैं इस process को। That way आज के लिए बस इतना ही। अपन नेक्स्ट क्लास में फिर दूसरा एक टॉपिक चूज करेंगे नेक्स्ट सोलराइजेशन का। सोलराइजेशन में और कोई पॉइंट था क्या? हमें टाइप्स देखने हैं, कैसे कैसे सोलराइजेशन किया जाता है उसके बारे में जानना है। वाटर ब्लेजिंग क्या है, ड्राई हीट से कैसे करते हैं, एंड टिंडलाइजेशन क्या है, यानी कि बॉइलिंग वाटर के थ्रू करना, और केमिकल कौन कौन से यूज होते हैं जिसके थ्रू हम सरलाइज कर सकते हैं, रेडिएशंस कौन कौन से हैं। तो इसमें भी जैसे आयोनाइजिंग रेडिएशंस हैं, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस हैं। यार ये तो पढ़ने की बात से पढ़िएगा इनके बारे में, एंड वी विल गो फर्दर, आगे चलेंगे। बस आज के लिए दैट्स ऑल, बिकॉज आई हैव गॉट सम अदर थिंग टू डू लाइक ऑनलाइन मार्क्स भरने हैं आप लोग के। एनीवेज, हाँ, कोई कुछ कह रहा था सेमेस्टर 6 में शायद कि कुछ प्रॉब्लम है, समथिंग रिलेटेड टू सेंसेस के बारे में पूछना था किसी को। somebody had, किसी ने मैसेज किया था। हाँ, हेलो सोनाली। ओके ओके। हम्म, अच्छा अच्छा। तो वो एग्जाम फॉर्म के लिए बात कर रहे हो आप? अच्छा, नहीं, कॉलेज के एडमिशन की बात नहीं है ना वो? अच्छा अच्छा। नहीं, अभी कुछ टेक्निकल एरर होगा तो आप रुक जाइए एक आध दिन में, शायद क्योंकि कंप्लेंट जा चुकी हैं शायद ऑलरेडी। तो यू विल हैव दैट सॉल्यूशन, कुछ ना कुछ आ जाएगा उसके बारे में। ओके ओके। एंड व्हाट एल्स? पढ़ाने के लिए यूनिवर्सिटी ने क्या कहा था मालूम है? कि फरवरी में शुरू कर दो, जब तक आप लोग एग्जाम भी नहीं हुए थे, प्रैक्टिकल्स नहीं हुए थे। अब वो ऐसा कह रहे हैं कि ये मंथ के एंड से शुरू होगा, बट वो पेपर में जो न्यूज़ आई थी उसके हिसाब से, बट देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी, क्योंकि अभी फर्स्ट सेम के एग्जाम्स होने बाकी हैं। तो अभी 5 तारीख से लेकर 20 तारीख के बीच में जितने भी फर्स्ट सेम एंट्री लेवल वाले जो एग्जाम्स हैं उनके प्रैक्टिकल्स होने वाले हैं, हो रहे हैं मतलब। क्योंकि यूनिवर्सिटी को सबको देखना होता है, पीजी कोर्सेज भी हैं, पीजी कोर्सेज भी हैं। हमारे प्रैक्टिकल्स हो चुके हैं, लेकिन पीजी कोर्सेज के बचे हुए हैं। तो ये अभी
15-20 तक तो हो जाएंगे, उसके बाद शायद फर्स्ट ईयर वालों का यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर वालों के एग्जाम्स होंगे। वो होने के बाद वो विंटर 20 खत्म हो जाएगा वहाँ पे। फिर समर आप लोग एग्जाम जो है समर 21 में है। अच्छा आप लोग एग्जाम फॉर्म जो भर रहे हैं आप समर 21 ही कर रहे हैं ना? ओके ओके। तो समर 21 उसके बाद ही शुरू, क्योंकि विंटर 20 खत्म ही नहीं हुआ अभी। तो एक सेशन बाकी है उनका, एक शेड्यूल बाकी है फर्स्ट सेमेस्टर वालों का। हाँ 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 हाँ। 50 को स्टार्ट में कम से कम 15 दिन तो लगेंगे ही उनको, क्योंकि वो एक हफ्ते 10 दिन में खत्म नहीं होते, क्योंकि उनके लैंग्वेजेस के पेपर भी रहते हैं ना, तो उनके एग्जाम्स ज़्यादा रहते हैं। एंड हाँ आप लोगों की ना, हाँ हाँ हाँ, नया सेमेस्टर की ना। अच्छा कॉलेज की फीस के लिए। हाँ। अच्छा वो कल शाम तक होने वाला था, कॉलेज वाला जो है कल शाम तक होने वाला था। अच्छा हाँ 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 वही। हाँ हाँ मतलब ये एग्जामिनेशन फॉर्म के लिए है ना, ये वाली बात हो रही है। तो ठीक है, अभी वो कंप्लेंट्स गई है बहुत सारी, तो देखते हैं यूनिवर्सिटी सेकंड क्या है, क्या हो रहा है। मतलब कुछ ऑप्शन नहीं आ रहा, किसी ने स्क्रीनशॉट भेजा तो मैं वही देख रहा था, ब्लैंक ब्लैंक आता है सब। एडमिशन फॉर्म का। हाँ 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 नेक्स्ट सेमेस्टर में, सिक्स सेमेस्टर में एडमिशन लूंगे आप लोग, तो वो हो गया। ये उसका फॉर्म तो है ऑलरेडी, इट्स ऑलरेडी देयर ऑन द वेबसाइट, कॉलेज वेबसाइट पे। एडमिशन प्रोसेस में जाएंगे तो वो है वहाँ पे, एडमिशन रहता है ना, एडमिशन वाला प्रोसेस है ना, एक लिंक है ना, उसमें आप जाएंगे तो उसमें ऑलरेडी सेमेस्टर का वो तो लगा ही हुआ है ऑलरेडी वहाँ पे, वो तो कितने सेमेस्टर से लगा हुआ है। तो वो तो कॉलेज में सबमिट हो जाएगा ना, जब आप एडमिशन प्रोसेस में आप 6 सेम में एडमिशन ले रहे हैं, तो 6 सेम सेलेक्ट करेंगे और वो फॉर्म भर देंगे वाला। हाँ हाँ ऑनलाइन करना पड़ेगा, पहले कुछ शायद फीस हुआ करती थी, शायद 50-60 रुपए 100 रुपए कुछ तो भी। हाँ हाँ, तो अभी शायद वो भी ऑप्शन नहीं खुल रहा है। वो उसको उसको ध्यान मत दीजिए, उसका फिर से मैसेज आएगा। यदि आपको वहाँ पर दिखता है लिंक ओपन है तो वो कर लीजिए, अदरवाइज मेरे ख्याल से वो भी शायद पैसे नहीं लेने वाले हैं, ऐसे बोल रहे थे। आई एम नॉट श्योर कि वो, क्योंकि पेमेंट गेटवे लग नहीं रहा। क्योंकि देखो ये समझने वाली बात ये है कि फॉर्म भरना एक अलग चीज़ होती है, जहाँ पैसे का इन्वॉल्वमेंट होता है वहाँ पे पेमेंट गेटवेज लगानी पड़ती है। गेटवेज मतलब जिसके थ्रू पेमेंट आएगा, आप दोगे और हमें रिसीव होगा। तो देयर देयर शुड बी अ गेटवे जहाँ से ये रेगुलेट होता है। तो वो गेटवेज जो होती है ना, वो उसका ना सब्सक्रिप्शन रहता है, जैसे हमने साल भर के लिए लिया या 3 महीने के लिए, उसकी अच्छा खासा उसको अमाउंट देनी पड़ती है। क्योंकि देखिए आप जब पेमेंट करते हैं तो आप उसमें से इंटरनेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं, यूपीआई से भी कर सकते हैं, या फिर कोई वॉलेट का ऑप्शन होगा तो वो भी कर सकते हैं। तो दीज ऑल थिंग्स दे आर टू बी इंटीग्रेटेड विद द सिस्टम। तो दिस एक्सपायर्स आफ्टर एवरी सम टाइम, तो वो उसको रिन्यू करना पड़ता है। तो मेरी यूनिवर्सिटी को, क्योंकि वहाँ पे भी बड़ी तकलीफ हो रही है, स्टाफ नहीं है काम करने के लिए, क्योंकि काफ़ी लोग इन्फेक्ट हो गए हैं। तो कम लोगों से हो रहा है तो स्लोली हो रहा है वो। और वो हमारी यूनिवर्सिटी ने ये सब जो ऑनलाइन चीज़ों के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है, उसमें भी कुछ कॉन्ट्रैक्ट ब्रीचिंग हुई है, किसी और को आधा दिया गया, किसी और को कुछ दिया गया। तो क्योंकि वो काम नहीं कर रहे थे, उनके पास लोग नहीं थे, तो बहुत सी अड़चनें आ रही है। यू ऑल हैव टू लाइक बेयर विथ दिस, क्योंकि दिस इज अनअवॉइडेबल। हम कुछ नहीं कर सकते, हमको थोड़ा बहुत सहना पड़ेगा थोड़ी आगे पे, लेकिन बस आप टच में रहिए, यूनिवर्सिटी के साइट के टच में रहिए, कॉलेज के साइट के टच में रहिए, है ना। बाकी तो आपको स्टाफ तो कोई पर्सनली आपको आपके ट्रबल शूटिंग के लिए अवेलेबल नहीं रहेगा, राइट। कीप ऑन चेकिंग दिस वेबसाइट्स, मतलब रेगुलरली बोलूंगा मैं तो, कोई इंटरवल्स की बात नहीं, हर दिन एक बार चेक करके देखिए, समथिंग कम्स अप। ओके, एंड व्हाट अबाउट योर एग्जामिनेशन, कितना? यार बस तुम्हारे क्या एब्सेंट आएंगे, क्या जीरो आएंगे?
हाँ, करना तो पड़ेगा, शेड्यूल तो करना पड़ेगा। वही उनके पास अभी स्टाफ की प्रॉब्लम है, इसलिए सारी प्रॉब्लम हो रही है उनकी। एनीवेज, इट ऑल विल बी रिज़ॉल्व्ड स्लोली स्लोली। फटाफट होगा ही। एंड डोंट लूज़ योर पेशेंस, डोंट लूज़ योर पेशेंस एज़ वेल एज़ योर टेम्पर, ठीक है? ये क्या है, एक चीज़ें खराब करती हैं और कुछ नहीं होता है। थोड़ा सहना पड़ता है क्योंकि सिचुएशन ही वैसी है। अभी देखिए कॉलेज में 2 लोग आते हैं, 2 या 3 लोग आते हैं। एक दिन आते हैं, एक दिन नहीं आते हैं। जिस दिन दूसरे काम वाले आते हैं तो बाकी खिड़की में बैठने वाले तो रोज़ आ रहे हैं। लेकिन 3 से 4 लोग हैं तो 4 लोगों में से सिर्फ 2 लोग आते हैं, उसमें से भी एक पॉजिटिव हो गया, तो वो नहीं आ रहा। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। एनीवेज़, कुछ समय और हमको वैसे ही निकालना पड़ेगा। स्टे सेफ, स्टे एट होम एंड कीप योरसेल्फ अवेयर ऑफ ऑल द गड़बड़ चीज़ें जो आती हैं ना व्हाट्सएप, उन पे ज़्यादा ध्यान मत दो और ज़्यादा न्यूज़ मत देखा करो, क्योंकि वो हमारा साइकोलॉजिकली हमें थोड़ा-सा वीक करता चलता है। ओके? चलिए फिर, दैट्स ऑल फॉर टुडे। वी विल मीट ऑन मंडे। ओके, थैंक